So, good morning, all of you. In this chapter, dissolution of the firm, we have already done the meaning of dissolution of the firm, difference between dissolution of the firm and the dissolution of partnership. Okay, later on we have done the what are the modes of dissolution, then what is firm debt and the private debt. These all sections we have done. Now the next topic which we have to do in this chapter is accounting treatment of dissolution of firm. When a firm get dissolved, what all accounts that we need to maintain? So there are total 4 accounts that we need to maintain when a firm gets dissolved. The first account that we have to maintain is realization account. This is an account which you are going to maintain first time because now the firm has dissolved. In previous all chapter you have prepared revaluation account. You are doing revaluation of assets and liability. Now here you are selling of assets and liability because firm is no more working. Next, you will be doing partners capital account, which you have already done. Third, you will be maintaining partners loan account, and last you will be maintaining cash and bank account. So in this chapter you have to prepare only 4 accounts. Today we will be discussing only about realization account. What is realization account? What is realization account? First of all, what is the nature of realization account? Realization account is a nominal account, okay, and it is prepared at the time of dissolution of the partnership firm. Fine. And then how do we maintain it? First of all, realization account is also known as recovery account. We both हैं उसे. When you do that, when your firm is going to dissolve, must be having so many assets and you will be having liabilities which to be paid off. Now the firm is going to close. There is no use of these assets, so you will think to dispose of this asset. ठीक है ना? To dispose of all the assets. Now when you have to dispose of all the assets, you will go to balance sheet, you will check all the assets, okay, ठीक है ना? You will see all the assets. First of all you take all the assets and you will take it to the realization account, recovery account में इसको लेके जाओगे. You are not going to sell it, okay, because these assets are no more required. इन assets को बेच के जो cash आएगा, that cash will be used to pay off the liability, right? तो ऐसे assets पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. If machinery is there, furniture is there, okay, there's so many things which were used in the business. Now it's of no use. So बच्चे अब हम क्या करेंगे? These all assets will be sold off. Before we sold off, sold करने से पहले इनको हम क्लोज करेंगे. क्लोज मीन्स बैलेंस शीट से उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है ना, कि हमने एसेट्स को क्लोज कर दिया, अब हमारे पास कोई भी एसेट्स नहीं है. ओके, क्लोजिंग ऑल द एसेट्स. यू ऑल नो एसेट हैज़ अ डेबिट बैलेंस. अब उसको क्लोज करना है तो विल वी डू इट क्रेडिट. और कहाँ जाके क्लोज कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में. सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. ओके, सन्ड्री एसेट क्रेडिट कर दी क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है. अब उनको हमने क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया. इंक्लूडिंग गुडविल. डू नॉट एक्सक्लूड गुडविल. गुडविल भी लेनी है. एक्सक्लूडिंग कैश एंड एक्सक्लूडिंग बैंक, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स. ओके, ये फिक्टिशियस एसेट्स ये नहीं लेने. पार्टनर लोन, अगर फर्म ने कोई पार्टनर को लोन दिया हुआ है वो भी हमारा एसेट्स है, वो भी नहीं लेना. तो ये सारी चीज़ें हमने छोड़ देनी है. एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स, पार्टनर्स लोन. ओके, अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ है तो वो भी फर्म का एसेट है, लेकिन हम इसमें नहीं लेंगे. नेक्स्ट एंट्री. अब एसेट्स हमने क्लोज कर दिया. अब दूसरी साइड हमारी है लायबिलिटी. अब लायबिलिटीज़ को भी उठा के रियलाइजेशन में लेके जाना है और उसको भी हमने क्या करना है? क्लोज करना है. तो उसकी क्लोजिंग और लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. ओके, अब इसको ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे? डेबिट. बैलेंस नील हो जाएगा क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो वैसे क्रेडिट होती है. अब इसको कर दिया डेबिट टू रियलाइजेशन. कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू. अब इसमें हमने क्या क्या एक्सक्लूड करना जो इसके साथ नहीं लेना? वी विल नॉट टेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं लेंगे, लोन फ्रॉम पार्टनर्स. अगर हमने पार्टनर से कोई लोन लिया हुआ है तो वो नहीं लेंगे. जनरल रिज़र्व या कोई भी रिज़र्व हो, दैट विल नॉट बी टेकन. और उसके अलावा एक्यूमुलेटेड
प्रॉफिट्स, P&L का कोई क्रेडिट बैलेंस है, दैट विल बी एक्सक्लूडिंग। ये चीज़ें हमने नहीं लेनी है, ठीक है, बाकी लेनी। अब जब सारी चीज़ें हमने रियलाइजेशन में ला के रख दी, नाउ इट्स अ टाइम टू सेल ऑफ एसेट। अब जो आ रहा है उसको हम बेचते रहेंगे, जितने भी एसेट्स हमने बेचने हैं। जब एसेट्स बेच दो तो आपके पास या कैश आएगा या बैंक आएगा। कैश आया, बैंक आया, टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से हमने पहले जब एसेट आया था रियलाइजेशन को डेबिट किया था, ठीक है ना। अब जब एसेट चला गया रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। एंट्री आपकी यही बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो जब जब आपका प्रॉफिट होगा, फर्म को फ़ायदा होगा, रियलाइजेशन विल बी क्रेडिट। जब वो फर्म को प्रॉफिट होगा या फ़ायदा होगा, रियलाइजेशन विल क्रेडिट। और जब जब प्रॉफिट उसको लॉस होगा या एक्सपेंस होंगे, रियलाइजेशन विल डेबिट। और कौन सी वैल्यू पे करना रिकॉर्ड? सेलिंग प्राइस। वो एसेट चाहे आपका रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम व्हाट इज रिकॉर्डिंग एज रिकॉर्डेड एसेट एंड व्हाट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। रिकॉर्डेड एसेट्स मीन जो बैलेंस शीट में दिया होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट मीन्स जो बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा, जो एडजस्टमेंट में दिया होगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, जो हमारे एसेट्स पड़े होते हैं, हमने बाहर तो बेचने होते हैं, पार्टनर कहता है, एनी ऑफ द पार्टनर सेज लेट्स डू वन थिंग, आई विल टेक द एसेट। मैं एसेट ले जाता हूँ, घर ले जाता हूँ, फर्नीचर बहुत सुंदर है, बहुत पसंद है मुझे, आई टेक इट अवे। फर्म को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, ठीक है ना। लेकिन फर्म को उसी वक्त कैश नहीं मिल रहा, पार्टनर पैसे देगा। और पार्टनर के पैसे देने के लिए पार्टनर का एक अकाउंट होता है, उस पार्टनर के अकाउंट का क्या नाम होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर के कैपिटल में से डेबिट कर लेंगे टू रियलाइजेशन, वो हमारा क्या हो जाएगा? फ़ायदा। तो रियलाइजेशन क्रेडिट किया एट एग्रीड वैल्यू। जितने की चीज़ बेची, इसमें हमने कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं देखना कि अगर सपोज बुक वैल्यू हमारी थी 1 लाख और सेलिंग प्राइस हमारा हुआ 70,000 का, तो मैम 30,000 तो लॉस हो गया। नो, देयर इज़ नो लॉस नो प्रॉफिट। चीज़ चलेगी, 70,000 हो गया, दैट्स इट, एट एग्रीड वैल्यू। नो लॉस नो प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड है। उसके बाद जब एसेट भी बिक गए, अब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करो। जब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हो तो कैश हमसे जा रहा है, फर्म को एक्सपेंस है उसका, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अमाउंट ऑफ पेमेंट जितनी हमने पेमेंट की है। हो सकता है जैसे कोई पार्टनर एसेट लेके गया, कोई पार्टनर बोलेगा कोई बात नहीं यार, इस लाइबिलिटी की पेमेंट मैं कर देता हूँ। सपोज ये क्रेडिटर्स है, इन क्रेडिटर्स की पेमेंट मैं कर देता हूँ, ओके। तो उन क्रेडिटर्स की जब वो पेमेंट करता है या बाहर की कोई भी लाइबिलिटी पे करता है, उसको पैसे तो देने ही है ना, चाहे हम बाद में पैसे दें, ठीक है ना। तो जब ये फर्म का नुकसान है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर को पैसे मिलेंगे, विल बी गेटिंग लेटर ऑन, सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट। उसके बाद लास्ट में यू विल बी हैविंग बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर तो डेबिट बैलेंस है, नुकसान है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर बैलेंस हमारा लॉस आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी ऑल्सो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ़ वी हैव प्रॉफिट, सॉरी, इफ़ वी हैव क्रेडिट बैलेंस। This is a format of realization account. The first thing, we have transferred all the assets. Realization account debit to land and building. बैलेंस शीट से सारे एसेट्स उठा लिए हमने, कुछ नहीं किया, बैलेंस शीट खोला, उसमें से सारे एसेट उठाए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल उठा के हमने यहाँ रख दिया। ये एक इट्स जस्ट लाइक अ गोडाउन में ला के रख दिए, कुछ नहीं किया, उठाया और यहाँ पे ला के पटक दिया। एसेट्स हमारे लिए खत्म हो गए, बेचे नहीं है, अभी सिर्फ पटका है। एक्सक्लूडिंग कैश बैक, फिक्टिशियस एसेट, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, लोन एंड कैप लोन्स टू पार्टनर, पटक दिए। अब जैसे हमने एसेट पटके हैं, ऐसे उठा के वहाँ से लाइबिलिटी भी पटको, बैलेंस शीट से उठा के क्या एंट्री बताई थी मैंने, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सारी की सारी एंट्री मैंने क्रेडिट साइड में लिखी, एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स कैपिटल, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, राइट। उसके बाद एसेट्स को बेचने की बात है। अब जैसे जैसे आपके एसेट बिक के क्या एंट्री बताई थी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सो बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, जितने एसेट्स आपने बेचे इन सब का किया टोटल यहाँ पे हमने लिख देना, क्योंकि इट्स नॉमिनल अकाउंट्स। दिस इज़ एन एक्सपेंस साइड, दिस इज़ एन इनकम साइड, दिस इज़ एन एक्सपेंस साइड, दिस इज इनकम साइड। पैसा आ रहा है तो इधर लिख रहे हैं, पैसे जा रहा है तो इधर लिख रहे हैं। और जो जो लाइबिलिटी हमने पे ऑफ की है, टू कैश, टू क्रेडिट, टू बैंक पैसा गया है,
टू क्रेडिटर्स, पीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे इकट्ठे करके, पेमेंट इकट्ठी करके यहाँ पे मैं लिखूँ। ये 4 स्टेप्स हो गए। 5th स्टेप में क्या करना है, जब ये सारा रियलाइजेशन होता है उस पर कुछ खर्चे भी आते हैं, काम करने के कुछ खर्चे आते हैं। अब वो खर्चे कौन पे कर रहा है, कोई भी पे कर सकता है, फर्म भी पे कर सकती है, पार्टनर भी पे कर सकता है। तो अगर फर्म पे कर रही है, फर्म का एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस विल बी ऑन डेबिट साइड टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई पार्टनर खर्चा पे कर रहा है, कहता है यार इसका खर्चा मैं पे कर देता हूँ, बाद में दे देना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिस साइड। और एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता है घर, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री बताई थी मैंने, व्हेन पार्टनर टेक्स एनी एसेट्स टू होम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन ओवर। तो अगर वो लाइबिलिटी घर ले जाता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लास्ट में बैलेंस निकालना है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, either gain either loss. So this is all about your realization account. These are some things which you need to remember in realization account. These are notes to remember, points to remember, and very important. I'll be speaking it first, just go through it. Okay. First of all, goodwill जो बैलेंस शीट में होती है, it's treated as a same asset as other assets are being treated. अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल के कितने पैसे मिले हैं बेच के, गुडविल कितने की रियलाइज हुई है, इट इज़ एज्यूम दैट द गुडविल डज नॉट हैव एनी वैल्यू। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि गुडविल की कोई भी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो में बिकी है, ठीक है ना, वो वेस्ट चली गई है। नेक्स्ट, व्हेन एन एसेट इज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर हम कोई एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे डेटर्स ट्रांसफ़र किया, तो उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी साथ में दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करना है। गॉट इट? डेटर्स का प्रोविज़न क्या होता है, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट शुड बी ट्रांसफर टू द अनदर साइड। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपके पास इतने एसेट्स हैं और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, सारे एसेट बिक गए, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया, मशीनरी बिक गई, लेकिन आपके पास लास्ट में फर्नीचर है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि फर्नीचर कितने का, कि फर्नीचर हमने कितने का बेचा है, ठीक है ना। तो उस केस में हम एज्यूम करेंगे इट इज़ सोल्ड एट द ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू पे बेचा है, उसका कोई भी पैसे हमारे पास नहीं आए, सो नॉट रियलाइज्ड एनी वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू। लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ के केस में हो कि हमने जैसे यहाँ पे किया था, हमारी लाइबिलिटीज़ थी क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इफ़ क्वेश्चन इज़ साइलेंट अबाउट एनी ऑफ दिस, क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो कि हमने क्रेडिटर्स पे किए हैं नहीं किए हैं, तो इस केस में ये नहीं कि हमने नहीं पे किया, क्रेडिटर्स नहीं छोड़ेंगे हमें, तो इट इज़ एज्यूम अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू इज़ पेड, जितना अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हमने वो सारा पे कर दिया है। एसेट के केस में ज़ीरो वैल्यू रियलाइज, लेकिन लायबिलिटीज़ के केस में बुक वैल्यू हमने पे कर दी है। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन एसेट्स आर टेकन बाय एनी ऑफ द क्रेडिटर, हमारे पास देखो एसेट्स भी हैं, हमारे पास लायबिलिटीज़ भी हैं। अगर कोई क्रेडिटर आता है हमारे पास पैसे लेने के लिए और उसको हमारा फर्नीचर बहुत पसंद आ जाता है, वो कहता है चल मुझे आपके पास पैसे नहीं है, गिव मी योर फर्नीचर, मुझे अपना फर्नीचर दे दो, मैं ले जाता हूँ, मेरे पैसे जितने चुकता होंगे आई विल बी सेटिस्फाइड इन दैट। तो फर्म कहती है, फर्म सेज ओके यू टेक फर्नीचर। अब हमारा एसेट भी गया, बेचना था गया, और हमारी लायबिलिटी भी एक ख़त्म हो गई। जब एसेट्स और लायबिलिटी आपस में क्रॉस होगी, इन दैट केस नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, we will not be posting any journal entry, very important। These all points which are discussed here are very important to keep in mind। So that was all about your realization account, okay। We'll be discussing the questions based on that tomorrow, go through that, watch it, any doubt please consult it to me। Thank you class।